Hello everyone, welcome to HW News. We are going live again to give you a little update about the polling that is going on in two states, that is Uttarakhand as well as in Goa, and the second phase of UP Assembly election. Let me say it first that it's a quite impressive voter turnout that all the three states have witnessed, especially UP has witnessed in this particular phase. But Goa, the voter turnout in Goa remains the most impressive. Let me give you a quick number as to which district has recorded how much voter turnout. Let us start with Uttar Pradesh. Second phase of UP, 55 seats are in the fray from across 9 districts. Saharanpur has recorded 56.70% of voter turnout, whereas Bijnor has recorded 51.79% of voter turnout. Moradabad has recorded 56.04% of voter turnout. Sambhal has recorded 49.11% of voter turnout. Rampur has recorded 52.74% of voter turnout, and the most impressive voter turnout among all the seats, among all the districts in Uttar Pradesh has remained in Amroha, which has recorded 60.06% of voter turnout till 3 o'clock this afternoon. Now remember, the voting will go on till 6 p.m. So until 3 p.m., the state, this particular district in Uttar Pradesh has recorded 60.06% of voter turnout. So until 6 p.m., we can expect more 10 to 15% of voter turnout. Budaun has recorded 47.72% of voter turnout, whereas Bareilly has recorded 50.18% voter turnout, and Shahjahanpur has recorded 46.86% of voter turnout, and total average turnout is 51.93%. Whereas if we look at Uttarakhand, the average voter turnout has remained at 49.24%, again at around 50%. And if we go to Goa, then the total voter turnout till 3 p.m. is at around 59.87%, which is around 60%. So, as I said, 3 more hours to go for polling to end, and we can expect 10 to 15% of more voter turnout in the next 3 hours. So I think it's a record voter turnout. At least if we look at the first phase of UP Assembly election, the total voter turnout in the first phase was just a little bit above 60%. However, if you look at the second phase, the voter turnout looks like that there are more voters coming out and voting this time around, not only in UP second phase, but also in Uttarakhand. Uttarakhand went for a little bit of lazy start, because only till morning 9 o'clock there was only 5% of voter turnout. Voting was done in Uttarakhand, but after that the state caught up with other two states, and now we can see that Uttarakhand voting is also at par with UP second phase and Goa. आई एम जॉइंड बाय माय कलीग विनय मिश्रा. विनय, क्या लगता है ये जो वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं, पहले फेज में हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा विजुअल्स तो आ रहे थे, हम देख रहे थे ग्राउंड पे लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो आखिरी में वोटर टर्नआउट का जो नंबर आया वो जो है वो इतना ज्यादा नहीं दिखा. लेकिन इस फेज में अगर हम देखें तो 3 बजे तक ही 60% और 50% वोटर टर्नआउट जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है. सामने आ रहे हैं. क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी. हाँ, तो अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि गोवा जो एक राज्य है वहां पर अच्छी खासी वोटिंग हो रही है. उत्तर प्रदेश में जो सेकेंड फेज के लिए वोटिंग हो रही है, यहाँ पर भी रुझान काफी अच्छे हैं. मतलब और उत्तराखंड से हालांकि अभी इतने वहां पर जो मतदाता है इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल कर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि पिछले चरण में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के लिए जब मतदान हुआ पहले चरण के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी घंटे में शायद 5-6% और भी ज्यादा वोटिंग होगी, लेकिन वहां पर उतनी संख्या में हुई नहीं. इस बार उत्तर प्रदेश में अभी तक जो रुझान है वो 50% के ऊपर ही है, तो ये काफी अच्छा संकेत है कि मतलब बड़ी संख्या में लोग निकल करके सामने आ रहे हैं. और जब जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि अगर ये जब नंबर ज्यादा हो जाता है अगर पिछली बार की तुलना में, तो लोग एक बदलाव चाहते हैं, वो ये बदलाव की ओर संकेत करता है. लेकिन पिछले चरण में अगर ओवरऑल वोटिंग की बात की जाए तो
उन्हीं विधानसभा सीटों में जिन 58 विधानसभा सीटों पर पिछली बार मतदान हुआ पिछले चरण में, और उन्हीं की तुलना अगर हमने जैसे जब हमने उन्हीं सीटों के पिछले मतलब 2017 के टर्नआउट की तुलना की, तो पाया कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मतलब जो बातें कही जा रही थी कि शायद पहले चरण में समाजवादी पार्टी या आरएलडी की जो गठबंधन है, वो उनका क्लीन स्वीप होगा, ये सब होगा, तो वो जो टर्नआउट है, उससे उसने थोड़ा एक बार मतलब सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया कि क्या वाक़ई मतलब वहाँ पर इस तरीके का नतीजा कोई आएगा। लेकिन दूसरे चरण की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर मतलब हर जगह रिपोर्ट में यही कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विधानसभा सीट है, जो जहाँ मुस्लिम आबादी वो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी संख्या है, वो काफ़ी निर्णायक साबित होते हैं, और समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से ही योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू, फिर प्रधानमंत्री कानपुर में थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या फिर अमित शाह हों, या फिर बहुत सारी एक के बाद अलग-अलग जगहों पर धड़ाधड़ रैलियाँ हो रही हैं। और अगर जो एक प्रचार तंत्र का जिस तरीके से भारतीय जनता उपयोग कर रही है, अगर हम अखबारों में विज्ञापन देखें या फिर टेलीविज़न पर, अब देखिए एक पार्टी पर लिमिट हो जाती है एक कैंडिडेट पे कि वो ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते। मतलब एक तय उनका बजट फिक्स किया जाता है कि इतना ही खर्चा किया जा सकता है, इतना ही किया जाता है, इस वजह से मतलब, लेकिन इंटरव्यूज़ के लिए कोई ऐसा अभी तक वो नहीं है निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो बस अपील कर रहे हैं मीडिया को कि ऐसा कोई चीज़ ना दिखाएँ जिससे प्रभावित हो वो हो, लेकिन उस पर कोई लगाम नहीं है, अगर कहा जा सके एक तरफ से। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग का इस तरह की हरकतों पर कोई भी लगाम नहीं है। जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका इंटरव्यू या आधे घंटे का इंटरव्यू था, और ये लगभग ये न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो न्यूज़ एजेंसी को जब आप इंटरव्यू देते हैं, तो जो भी चैनल उनको सब्सक्राइब करते हैं, सभी के सभी मतलब वो इंटरव्यू दिखा सकते हैं। तो लगभग सभी चैनलों पर उनका वो इंटरव्यू आधे घंटे का चला। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी ताकत तो झोंकी जा रही है। समाजवादी पार्टी भी मतलब ये चरण नहीं, अगले चरण को मद्देनज़र रखते हुए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस जो मीडिया एक तंत्र है, इसका बखूबी उपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और फिर से मैं वापस लौटूँगा आपके सवाल पर कि जो ये अच्छी खासी संख्या में लोग बाहर निकल कर के दूसरे चरण के जो मतदाता हैं, वो वोट कर रहे हैं, तो ये एक संकेत है कि बदलाव की ओर, मतलब ये संकेत बदलाव की ओर इशारा करता है। Well, I think Mr. Munish Srivastava, who is a member of SW News Network on YouTube, has asked us this question: that isn't high voter turnout usually deemed as against incumbent government? So I think Vinay has very much answered this question. Yes, it is generally considered that people who are angry with the present dispensation, they come out during the voting, during the polls, and they vote heavily. And that is why when the voter turnout is more, it is considered that it is generally against the incumbent government. So that's what the high voter turnout means generally, but the final results will tell us exactly what the high voter turnout means. Let us और also give वैसे you a quick. जी हाँ, जी हाँ, विनय. अगर मैं गोवा की बात करूँ, तो अगर वहाँ पे 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर तो मतलब गोवा की संख्या, गोवा के जो मतलब मतदाता है, वो काफ़ी उनका रिकॉर्ड ही रहा है कि वो अच्छी खासी संख्या में निकल गए। पिछली बार भी 80% के ऊपर ही टोटल ओवरऑल गोवंस वो गए थे मतदान करने के लिए, और इस बार भी वहाँ से काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं कि बहुत संख्या में जो वहाँ के मतदाता हैं, निकल कर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। उत्तराखंड में ये संख्या सबसे कम है, और दूर-दराज वहाँ पे इलाके होते हैं, रिमोट एरियाज़ होते हैं, सब कुछ हो जाता है, और ठंड भी एक वजह हो सकती है। तो ये सब एक फैक्टर हो सकता है कि वहाँ पर जो टर्नआउट है, वो थोड़ा कम रहा है। Although we are still seeing a lot of pictures coming in from Uttarakhand where elderly, 100 years old, 90 years old people are coming out. They are facing hardships, but still they are coming out and voting in this election. And not particularly this election, as Vinay said, that generally there is a mood in favor of coming out and voting in Uttarakhand, as well as we can see the same in Goa as well. Interesting fact from Goa is Sanquilim continue to report the highest voter turnout at 3 p.m. in North Goa, which is 70%.
So the Sanquilum constituency has recorded 70% of voting till 3 p.m. This afternoon. So I think 70% people have already voted. 70% of the voters have already voted in Sanquilum. So as I said, 3 more hours to go, and the number can breach again 80% of the mark, as Vinay said, which was followed by Bicholim, which has recorded 66% of the voter turnout. And in South Goa, Sangyum reported the highest voter turnout at 3 p.m. at 69.47%, and Priol has recorded 67% of voter turnout. So I guess, as Vinay said, that Goa has recorded high voter turnout throughout the its election history. So this time around will be no different. But as I said, average voter turnout at 3 p.m. in Goa remains at around 60%. So in the next 3 hours, it can go up 10% or 15% more. जी विनय. हाँ, गोवा में जैसा आपने बताया कि वहाँ पे काफ़ी ये है, और अभी 3 बजे तक के आंकड़े हमारे सामने आ गए। आपने बता दिया हर एक जगह का, उत्तर प्रदेश का भी बता दिया आपने, उत्तराखंड का भी बता दिया, और गोवा का भी बता दिया आपने कि किस तरीके से लोग वहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे-जैसे मतदाता वोट कर रहे हैं, मतलब अच्छी खासी में लगभग आधे मतदाता तो हर राज्यों में कह ही सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने मतदान कर दिया है, क्योंकि टर्नआउट लगभग 50% के करीब हर जगह है। वो भी 3 बजे तक के आंकड़े हैं, और अभी फिलहाल बज रहे हैं 4:30। लेकिन जो एक बयानबाजी है, जो एक प्रचार है, अभियान है, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है। लगभग भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गया है। और उत्तर प्रदेश चुनाव को में दूसरे चरण को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक उनकी कानपुर में एक रैली थी, कानपुर देहात में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक काफ़ी दिलचस्प बात कही कि जो वहाँ की मुस्लिम महिला वोटर्स है, वो चुपके-चुपके बिना शोर-शराबा किए भारतीय जनता पार्टी को, मतलब उन पर अपना आशीर्वाद, मतलब प्रधानमंत्री ने बोला कि वो मोदी पर अपना आशीर्वाद, मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये एक काफ़ी दिलचस्प बात लग रहा है कि क्या वाक़ई जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी गवर्नमेंट ने इस तरीके के मतलब काम किए हों, या फिर उनके कुछ ऐसे स्कीम्स हो, पॉलिसीज़ हों, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे पॉलिसीज़ हों, जिसकी वजह से वहाँ पर जो इस बार जो मुस्लिम विमेन वोटर्स हैं, वो अपने धर्म से उठ करके मतलब विकास के नाम पर वोट दे रही है। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। Well, before I go further, I would just like to say thank you to Ronald De Costa. He's a new member on YouTube. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining our membership. Ronald De Costa has joined us as new member. All of those who are watching us live, please, if you want to contribute to HW News Network, please also go to our YouTube channel. You can get the join button there. Besides the subscribe button, you can join us, join our membership, and there are benefits and perks which are mentioned there. So you can join us and you can contribute to us. Otherwise, you can also go to our website www.hwnews.in/subscribe, and you can find different subscription plans on our website as well. It's a majorly for one-time payment option, so you can subscribe to us and contribute to us. Well, as Vinay was saying, I think the issue in this particular election that we should talk about and we should focus on is the violation of model code of conduct. It is generally said that during the election period, the model code of conduct is something that provides a level playing field for the candidates, for the parties, because different parties have different monetary support. Different candidates come from different monetarily supported background. So model code of conduct is something that ensures that there is a fair and level playing field for all the candidates. But this time around, we can see, especially not in terms of monetary, I will say, but in terms of following certain rules that are laid down by the Election Commission of India, especially in terms of giving interviews to media channels, etc. This rule seems to have been violated the most. During the first phase, we have seen Prime Minister Narendra Modi giving interview to a major news agency just a day before the polling. Uh, all the news channels in India broadcasted it live on their television in the silence period. Then we also saw on the same day, just a day before the polling, Congress party
Priyanka Gandhi released the manifesto of the Congress party. On the same day, Akhilesh Yadav gave an interview, television interview, to a private media news channel. So, all the three parties, they did not have any regard for the silence period that was let down by the Election Commission of India. Now comes the second phase. In the second phase, we are seeing that Yogi Adityanath is releasing. Yogi Adityanath gave interview to a news agency, and that news agency released the interview on the day of the polling, on the morning of the polling, and all the news media channels carried it. Mainstream news media channels carried it. I think that is something that we should focus on. As Vinay rightly said, Election Commission of India has released a statement regarding this, but it has only asked the media channels to refrain from broadcasting, telecasting such interviews during the silence period, and respect the model code of conduct. But will that be enough is the big question right now. And I think moral code of conduct, violation of this model code of conduct, is something that is going to be a big issue this particular election. Vinay? हाँ, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सिर्फ इसी चुनाव में नहीं, हम पिछले कई चुनाव से देखते आ रहे हैं। अगर आपको 2019 लोकसभा चुनाव याद होगा तो उस समय तो एक नरेंद्र मोदी चैनल ही आ गया था, वो कुछ दिनों के लिए ही था, चुनाव के समय आया और फिर चला गया। और इस तरीके के कई सवाल मतलब पिछले कुछ सालों में तो ज़्यादा ही उठने लगे हैं। और हम ऐसे कुछ जो मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी याद भी हमें खूब ज़्यादा आने वाली है कि किस तरीके की वो जो ऐसे मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते थे, तो ऐसे नेताओं पे किस तरह की कार्रवाई करते थे। अभी तो फिलहाल अदालत की ओर से भी मतलब एक टिप्पणी आई थी निर्वाचन आयोग के लिए कि ये मतलब टूथलेस हो गए हैं, ये कुछ ज़्यादा मतलब एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। और तो इस तरीके के तो एक बार फिर से मतलब सोचने पे ये हमें विवश होना पड़ रहा है कि क्या वाक़ई, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक जो स्वतंत्र संस्था है, कहने के लिए तो ये किसी भी मतलब सरकार और किसी भी तंत्र के अधीन नहीं होते, सबसे मतलब एकदम स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, एकदम फेयर तरीके से इलेक्शन करवाना इनका मतलब जो मुख्य कर्तव्य होता है वो यह होता है। और तो जो देशवासी हैं उनकी निगाहें इन्हीं पर टिकी होती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर बहुत ज़्यादा उनके पास धन है, बल है, सब कुछ है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये जो धन बल का उपयोग मतलब एक फेयर ग्राउंड होना चाहिए सभी पार्टियों के लिए, जिस पर वो जाके चुनाव लड़ सके। मौका सबको बराबर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी है वो मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रही है, सब कुछ इस तरीके से। बाकी जो विपक्ष के अब क्या यहाँ पर हम अगर टेलीविजन चालू कर लें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक या फिर शायद ही कोई और कभी-कभी हो जाता है कि विपक्ष का एक आध नेता भी हमें दिखाई पड़ जाता है कुछ कहता हुआ, या फिर उसके भाषण की लाइव टेलीकास्टिंग मतलब विरले ही लेकिन दिखाई पड़ जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दल भी हैं जो छोटे दल हैं, लेकिन राज्य में उनका काफ़ी दबदबा है, सब कुछ है, उनकी बातें हम तक नहीं पहुँच पाती। अगर हिंदी मेनस्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो यहाँ पर तो ये कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मणिपुर में भी चुनाव है, लेकिन वहाँ की इतनी बातें नहीं की जा रही हैं। शायद ये वजह हो सकता है कि हिंदी जो भाषी लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हों। लेकिन अगर बात की जाती है निर्वाचन आयोग के स्वतंत्रता की, तो पिछले कुछ सालों से लगातार ये मतलब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाक़ई निर्वाचन आयोग को जितना स्वतंत्र होना चाहिए, जितना उनके अंदर शक्तिशाली होना चाहिए, जितना भी वो उनके पास ये ताकत होनी चाहिए कि अगर कोई नेता वायलेट करे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उस पर वो एक्शन ले सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के लोगों में शिकायतें हैं, विपक्षी दलों में शिकायतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल मतलब पूरी तरह से मतलब वो इसका शिकार ही होते हैं। उनको भी कभी-कभी इसका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है विपक्षी दल के भी कई नेता हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि आपने खुद बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो ठीक है, ये बड़े थोड़ा ज़्यादा ही व्यापक पैमाने पर हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि प्रियंका गांधी जब वहाँ पर फर्स्ट फेज़ के लिए
ये जो साइलेंट पीरियड था वो मतलब क्योंकि अगले ही दिन मतदान होने थे और एक दिन पहले शाम को वहाँ पर जो कैंपेनिंग होती है वो थम गई थी, रोक दिया गया था शाम को। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैनिफेस्टो लॉन्च किया। अखिलेश यादव थे, वे प्राइवेट चैनल को वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। तो एक लोगों के ज़हन में सवाल उठ रहा है कि शायद हम जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जिस पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इतने बड़े लोकतंत्र में वो निष्पक्ष तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शन को कंटेस्ट करवाए और वो लोगों की अपेक्षाओं पर फिलहाल तो खरा नहीं उतर रहा है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। Ji. I think there are two such incidents that have happened today. One is in Uttarakhand, where we saw Pushkar Singh Dhami, the Chief Minister of Uttarakhand, going to cast his vote. He cast his vote while wearing a shawl which had the logo colors of BJP, that is saffron and green. Also, along with his wife was also there, who was donning a shawl which had a BJP symbol on it. So a lot of people are tweeting about this, and they are asking a question as to where exactly is the Election Commission of India, because no action has been taken so far. There is not a word from Election Commission so far on this particular issue. Vinay, can you just elaborate on such kind of the rule of Election Commission of India which bars candidates from wearing anything or donning anything or making any kind of gesture that can influence voters? देखिए आरती, मैं स्पेसिफिक आपको सेक्शन तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जो मैंने देखा हुआ है, अगर मैं पोलिंग स्टेशन पे जाता था वहाँ पर, तो मैंने ये देखा है कि जो पार्टी के वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, देखिए बूथ के बाहर वो क्या करते हैं, अपना डेस्क लगा के बैठते हैं। अलग-अलग पार्टी के लोग होते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा, कोई कांग्रेस पार्टी का होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोगों की मदद करने के लिए, पता चलता है फला पार्टी से हैं जो भी है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं अपनी बात को, ना वो अपने पार्टी का बैनर लगाते हैं, ना फिर ऐसा कोई सिंबल यूज करते हैं जिससे पता चलता हो कि ये फला पार्टी से आते हैं। वे कार्यकर्ता होते हैं, राजनीतिक दलों के ही होते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है, वो इस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते। यहाँ पर अगर राजनीतिक जो भी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए, तो उन पर भी यही प्रतिबंध है इस तरीके की। जिस दिन चुनाव है उस दिन आप उसका प्रचार नहीं कर पा सकते, आप अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, ये नियम है चुनाव आयोग का। तो अगर जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी पत्नी, अगर वो उन्होंने पहना हुआ है, मतलब जो भी था वो पार्टी का शॉल कह सकते हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो वो एक तरह से प्रचार हो जाता है, पार्टी का प्रचार, वो आप नहीं कर सकते, ये गलत है। Well, so I guess there are laws, there are rules, and there are loopholes, and these loopholes are exploited time and again. Also, there is one such incident in Uttar Pradesh where in Kannauj, I guess, smartphones were distributed to girl students in a school, and SDM was apparently present there. So after the media highlighted this particular issue, that smartphones are being distributed when second phase of polling is going on in some other constituencies in Uttar Pradesh, I guess the SDM walked out of that particular school, and I don't know whether the smartphone distribution has been stopped or not, but this distribution of smartphones was going on. This smartphone distribution was, I guess, the idea of the state government. They had said that they will distribute the smartphones to the youth. Yogi Adityanath had introduced this scheme. बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की ओर से, मतलब उन्होंने इनका चुनावी प्रचार में दावा भी है, लेकिन ये जो घटना सामने आई है कि यहाँ पर स्कूल में वहाँ पर छात्रों को टैबलेट बांटे जा रहे थे, ये तो मतलब अगर इस तरीके की रिपोर्ट जो सामने आ रही है, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है, तो ये पूरी तरह से जो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका वायलेशन है, क्योंकि जो भी ऐसे ये आप कह सकते हैं कि एक वेलफेयर स्कीम की तरफ जो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसको किया जाता है, तो इस तरीके के जो स्कीम्स है उसको लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से चीजें अगर राज्य में इसका घोषणा की जा चुकी है कि फला-फला डेट में ये है, तो एक बार जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है, तो ये करना गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि शायद आप इन सब चीज़ों को दे करके, इन सब चीज़ों से आप सरकारी पैसे से, समझ लीजिए, जो मतलब एक
टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, उसका उपयोग करके आप एक पार्टी के मतलब इसको फ़ायदा जो सत्ताधारी पार्टी है उसको मिलेगा। तो ये टोटली अनफ़ेयर होता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी इस चीज़ की मनाही है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ है, जिस तरीके की विजुअल्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं गलत है, तो ये गलत है। भले ही कन्नौज की बात आपने कही, कन्नौज में शायद अभी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है मतलब उसकी घोषणा चुनाव की घोषणा हो गई है प्रदेश में, तो पूरे प्रदेश में भले वहाँ पे चुनाव हो ना हो, एक बार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाए, तो आप इस तरीके से मतलब अगर सरकार लैपटॉप बाँट रही है, सरकार ये सरकारी था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। Let me give you a quick update as to what is happening in Hamirpur. In Hamirpur, the two groups, one belonging to the SP camp, one belonging to the Congress camp, have clashed with each other, and the violence has been reported from Hamirpur. However, the Prashasan, the administration, is taking necessary steps to stop this violence. So that is what an update is from Hamirpur. Let me quickly once again tell you what are the voter turnout in all these three states. As I said, in Uttarakhand, the total average voting is 49.24% till 3 o'clock this afternoon. In Uttar Pradesh, it is 51.93%, almost 52%. And in Goa, the total voter turnout till 3 p.m. is average 59.87%, which we can consider at around 60%. So this is the latest update from Uttar Pradesh, Uttarakhand, as well as from Goa. Also, now the campaign battle has moved from UP, and the battleground is Punjab, because on 20th the election will be held in Punjab for all the assembly seats. So today, Prime Minister Narendra Modi, Congress leader Rahul Gandhi, Congress MP Rahul Gandhi, Kejriwal, all three of them were in Punjab. Today, Prime Minister Modi is still in Punjab. Rahul Gandhi is still in Punjab. Kejriwal was addressing a campaign rally this morning. So I think Punjab is the new battleground, and we will talk about it in the next live. But for this particular live, that's all that's all the update we have for you now. Thank you so much for watching this. We will get you more updates as they come to you. Thank you so much. सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, #डी न्यूज़ पर।